ग्रेटिंग्स सबको जय मसीह की। आज एक और बार आप लोगों के बीच में आने के लिए खुदा ने ये मौका दिया। God has given me one more opportunity to come before you with the word of God, with the blessings that God is in store for you. Please stay in line. I will be coming soon, right after few minutes. आप कहीं मत जाइएगा, इन ट्यून रहिए। मैं अभी ऑनलाइन आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वचन आप लोग के लिए और हम सब के लिए जो खुदा ने रखा है वो लेके आके whatever God is in store for us today, I'm bringing the word of God. I believe that today God is going to bless all of us. Stay in tune. See you soon. God bless you. See you. प्रभु की हुजूरी में आना, उसकी हुजूरी में समय बिताना कितना ही सुहावना और बरकत की बात है। आज आप और मैं जो ये समय खुदा की हुजूरी में थोड़ी देर बिताने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ आज खुदाबंद कसरत के साथ ज़बरदस्त हम सभी के साथ बातचीत करने वाला है और बरकत देने वाला है। What a pleasant and good it is for us to come in the presence of God and to spend time in His presence to worship God. And today God is going to bless us abundantly in His presence because He is a God who loves to bless His children. I would like to invite you this time to join with me to worship God, to learn from Him, and to receive and to give Him all the glory and to proclaim His name. मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज इस समय हम सब साथ में मिलकर उसकी प्रस्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और उसके नाम का झंडा लहराएंगे, उससे सीखेंगे, उससे बरकत पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर खुदा है वहाँ पर बरकत है, वहाँ पर जिंदगी है, वहाँ पे तसल्ली है, सुकून है, अमन है। Because where there is the presence of God, there is joy, there is fullness of joy and eternal life. Do not forget to like it, to comment and also to share. Like करना और comment करना और share करना मत भूलना. Please write down your prayer request. We are in a time of fasting and prayer. We would surely pray for you. Last week, some of you have sent your prayer request and we prayed for you. And if you have seen God's faithfulness, please share your testimony. We would like to have your testimony included in our program. पिछले हफ्ता आप लोगों ने जितने लोग अपनी गवाही को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर किया था, हम हर रोज़ आपके लिए दुआ करते हैं। अगर खुदाबंद ने आपके जीवन में कुछ काम किया है, आपने देखा है तब्दीली, आपके जीवन में परिवर्तन देखा है, आप ज़रूर हमें लिखिए और हमें बताइए। आपकी गवाही ज़रूर हमें शेयर करने के लिए बोलिए। हम हमारे प्रोग्राम में आपकी गवाही को ज़रूर पूरे दुनिया के सामने सुनाने के लिए हम जो है पूरी कोशिश करेंगे और ज़रूर शेयर करेंगे ताकि दुनिया के लोग सब प्रभु के काम को सुने और ब्लेस हो जाएं। We will surely broadcast your testimony in your program and you will be blessed. To know more about your program, to know more about ministry, we would encourage you also to check time to time our Facebook, at the same time our website. Our website is www.faithshalom.com. टाइम पे हम आप हमारे फेसबुक को ज़रूर देखते रहिए और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ खुदा के काम में जुड़ जाइए और खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए हमारे वेबसाइट को आप चेक करिए www.faithshalom.com और आप वहाँ पे हमें अपना सुझाव, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सब भेज सकते हैं। लेकिन आज यहाँ पे फेसबुक जो आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर, टीवी चैनल्स में देख रहे हैं, कमेंट करिए, हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक गीत को गाएं। इस गीत के साथ हम खुदा की प्रस्तुति करें और मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद आपको छूना चाहता है। जहाँ पे प्रस्तुति होती है वहाँ पर खुदा की हुजूरी होती है। Where there is worship, He establishes His throne. I believe that today as we worship, we will see the presence of God touching you, ministering to you. Maybe your sicknesses will be gone. Maybe your worries will be turned into worship and your life will be transformed. Let us worship together with these songs. आइए इस गीत को गाकर खुदा का धन्यवाद। Jesus Christ. Where is our Bible? God is going to open the mouth. They will talk about Jesus. In the name of Jesus. I proclaim healing.
यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे। आराधना मैं करूं, तेरी स्तुति प्रभु मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी स्तुति प्रभु मैं करूं। यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, यीशु मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मैं ना हारूंगा, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। विश्वास है ये मेरा, विश्वास है ये मेरा, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे। मेरे लिए शैतान को तू हराया है, मेरी बीमारियों से मुझे चंगा किया है। मेरे लिए शैतान को तू हराया है, मेरी बीमारियों से मुझे चंगा किया है। विश्वास है ये मेरा, विश्वास है ये मेरा, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा ऊपर है मेरे। और मेरे सारे घराने तुझसे आशीष पाते रहेंगे। मैं और मेरे सारे घराने तुझसे आशीष पाते रहेंगे। विश्वास है ये मेरा, विश्वास है ये मेरा, यीशु तेरा ऊपर है मेरे, यीशु तेरा
I hope you have enjoyed the song and you have worshipped God and you have received the blessings from the Lord. मैं आशा करता हूँ कि आप गीतों को सुना है, गीतों को एंजॉय किया है और गीत के जरिए से आपने खुदावंद की प्रस्तुति किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन दिनों में जरूरत से ज़्यादा समय खुदावंद के साथ बिता रहे हैं। I hope that you are spending more time with the Lord. I hope that your prayer time has increased. I hope your Bible reading time has increased and I hope you are having time with the Lord and learning deeper from the Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में आप प्रार्थना का समय, वचन का समय, मेडिटेशन का समय आपने बढ़ाया होगा और खुदावन की आवाज को आप सुन रहे होंगे इन दिनों में। Because the things that we are seeing in the world is very contrast to the promises of the world that we were having couple of months ago. क्योंकि आज जीवन में हम जो देख रहे हैं, दुनिया में जो देख रहे हैं, वो सारे उन चीजों से अलग है जो कि दुनिया वादा कर रही थी। The things that are being broadcasted in the world are kind of discouraging. The things that we're experiencing and seeing around us, it's kind of very, very discouraging. जो दुनिया लोग हमें बता रहे हैं, जो हम देख रहे हैं दुनिया में, जो हम आज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सारे जो है आजकल बहुत ही डिस्करेजिंग है। नो मैटर हाउ अमाउंट ऑफ एनकरेजमेंट इज इंस्टॉल्ड इन द लाइव्स ऑफ पीपल आर बीइंग डिस्करेज्ड फोर्सफुली। ना ये जितना भी ज्यादा हम लोगों को एनकरेज करने की कोशिश करते हैं, फिर भी दुनिया की माहौल, दुनिया की न्यूज, दुनिया की परिस्थिति लोगों को डिस्करेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आज की शाम वचन के जरिए से थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड मैं आप सभी के साथ इस कलाम को लेके आ रहा हूं कि खुदाबंद इन दिनों में हमारे साथ क्या बातचीत कर रहा है। ये जो जनवरी की महीना है, ये जो नया साल है, इस साल में खुदाबंद हमारे जीवन में क्या करने वाला है, क्या कर रहा है और क्या वो चाहता है। I would like to bring to you this news that what God has in store for us this year and what He want us to react and how He want us to live our life these days. One thing that Bible tells us to all those who believe in Christ, एक बात जो बाइबल हर एक वो विश्वासी के साथ बात करता है, ये है कि do not lose your heart. अपनी उम्मीद को खोना नहीं। Do not lose your, अपना दिल छोटा नहीं करना। So my title this hour for all of us is do not lose heart. दिल को छोटा नहीं करना है, उम्मीद नहीं खोना। It's very hard for us to keep with that upbeat spirit when the things around us are going contrast to what we expect and what we wanted to expect and what we were expecting. उस समय ये बहुत ही मुश्किल होता है दिल को मजबूत रखने के लिए, उम्मीद के साथ रहने के लिए, जब हमारे चारों तरफ वो सारे बातें हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रहे हैं जो कि हमारी उम्मीद से उल्टा, जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो हम उम्मीद करना चाहते हैं, जो हम उम्मीद कर रहे हैं। But something that we understand that how we can remain strong not to lose heart. हम एक बात को ध्यान करेंगे, किस तरह हम बिना उम्मीद को खोकर हम मजबूत रहेंगे। इन दिनों में शायद आप कई वजह से आप डिस्करेज हो रहे होंगे, अपने दिल को छोटा कर रहे होंगे और हार्ट जो है डिसहार्टेड हो रहे होंगे। Maybe there are a couple of things in your life that you feel discouraged, you lose your heart, you're trying your best in your business and you're not able to click the way you wanted to, the way you were doing before. Nothing is happening in the business sector. You are trying your best, but it's not clicking the way it should be. शायद आप आपके व्यापार में, आपके कारोबार में आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, नए दिशा को आपने देखा लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया है। Probably some of your investment has gone wasted and probably some of your customers, probably some of your supplier have cheated you. शायद आपके कई कस्टमर्स जो है, आपके जो सप्लायर है, शायद आपको चीट किए होंगे। आपके बहुत सारे जो अमाउंट आपके पास आपका जो कलेक्शन था वो कलेक्शन रुक गई होगी। Probably there was so many collection that you had to do, you had to get back your money but it is not coming yet. They are just giving you dates after dates. शायद आप जो जिनसे कलेक्ट करना है वो आपको आज दिनों में वापस नहीं कर रहे हैं। शायद आप उनसे सिर्फ तारीख ही पा रहे हैं और बीमारी के वजह से उसको ठीक करने के लिए आप कई डॉक्टर के पास का सलाह कर रहे हैं, डॉक्टर को मिलना मुश्किल हो रहा है, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। तो आप बोल रहे होंगे क्या हो गया, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा दुनिया। Probably the doctors that you're consulting because of your sickness and the doctors are not ready to meet with you physically. You are meeting with them online. The appointments are becoming online and you are just believing them. You're just paying, you're getting medicines and doing all those things. And some way you are thinking how long it will run, how long you should continue, what is going to happen.
Maybe there are so many other things that are happening in contrast to your expectation and you are being discouraged. शायद आपके जीवन में कई ऐसी बातें हो रहे हैं जो कि आपकी आशा से अलग उल्टा हो रहे हैं और आप किसी ना किसी वजह से दिल छोटा करके बैठे। मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं। आप लोगों के लिए आज खुदावंद कुछ बहुत बताना चाहते हैं। खुदावंद आपके जीवन के लिए कुछ सॉल्यूशन बताना चाहते हैं, कुछ बात आपसे करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए और आज के कलाम के मुताबिक आप अपने जीवन में मजबूत हो जाइए। आप जिस मुकाम में हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं, डिस्करेज भी होंगे, परेशान भी होंगे, तकलीफ में होंगे, खुदावंद आज आपको छुटकारा, रिहाई और डिलीवरेंस देना चाहता है। Today I want to bring this message to you as God wants to talk to you. I would like to talk to all of you that you will be encouraged. You will be able to overcome. You'll be able to see the breakthrough. This is the word that God is giving to you. Listen to it carefully. As Bible says in 2 Corinthians chapter 4, verses 16 onwards, it said, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing. Yet the inward man is being renewed but day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us for far more exceeding an eternal weight of glory, while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Hindi Bible says like this, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। May the Lord add blessings in reading and also listening to his word. Father, I pray that may your spirit intervene in all of our lives as we look into your word in detail. Speak to us, Lord. खुदाबंद जब हम तेरे कलाम को देख रहे हैं, हमें तेरी रूह के जरिए से तू मदद कर, अगुवाई कर। यीशु के नाम से, in Jesus name we pray. Amen. Therefore, we do not lose heart. What is that therefore? What is that therefore? The therefore is that God loves you. Paul is explaining there that how he exploded his grace through his life because of his love for us. पौलुस बोलता है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। कौन सी बात के लिए? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने अपना प्यार हमारे ऊपर इतना दिखाया है, वो अपने प्यार के वजह से उसका अनुग्रह हमारे ऊपर इतना दिया है कि जो कि आम इंसान को दिखाई देता नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, वो हमें हर मुकाम से बचाने के लिए अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी, अपनी जान हमारे लिए दे दिया, अपने आप को हमारे लिए, अपनी अनंत महिमा को छोड़कर इस दुनिया में आ गया। He has loved us. He left his glory of heaven and he came down for us. He gave everything that he had and he gave his life. He shed his precious blood. That's why we cannot depend on the things of this world to have hope, but we should depend on God who is eternal and who cannot fail anytime. And based on his love, let us hope further. My first point for us today is get in love with Jesus. पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रभु के प्रेम में आप मशगूल हो जाए, प्रभु के प्रेम में आप भरपूर हो जाए। Fall in love with Jesus. यीशु के प्यार में आप आ जाएं, यीशु के प्यार में आप भर जाएं। Fall in love with Jesus because the love of God changes everything. What is the love of God? It won't deal with you according to what you deserve, but it extends a door for you to receive the grace. प्रभु के प्रेम को पाना, प्रभु का प्रेम क्या है? ये प्रेम दुनिया के लोगों के जैसा प्यार नहीं है। ये प्यार वो है, हम जो डिजर्व करते हैं उसके बावजूद भी हमारे लिए एक अनुग्रह का, कृपा का, ग्रेस का दरवाजा खोलकर हमें दोबारा एक मौका देने वाला वो प्यार है, जो कि हमें
जो उसने हमारे लिए बना के रखा है वो हमें देकर ही छोड़ता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो हमारे जीवन में जो उसने वादा किया उसको पूरा करने के लिए वो तैयार रहता है। Whatever he has promised for us, he does it because of his love. He doesn't condemn us. He don't blame us. He don't leave us alone. He don't forget our problems. He don't forget our situation. He don't forget ourselves. He remembers us. खुदावन हमारे गुनाह को माफ करके नहीं याद रखता है, हमें याद रखता है। He loved us so much. दुनिया के कोई भी आपको इतना ज्यादा प्यार नहीं कर सकते हैं जितना ज्यादा प्यार यीशु आपसे करता है और करेगा। Nobody in the world can love you like him who loved you so much. Nobody can even love you. Nobody has loved you like that. How Jesus has loved each one of us. He came down to this world. He took all our sins upon him. He forgave our sins. He has presented himself with love. यीशु मसीह हमें प्यार किया और हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। He come to us with love. Everybody were cursing and speaking bad words and calling in rough names to Zacchaeus because he was a sinner. Everybody used to hate him. जक्कई जो है, जक्कई को सब नफरत करते थे, उसको कई कई नाम से लोग पुकारते थे। कई तो उसको चुंगी लेने वाला, कोई तो उसको पापी, कई तो गुनहगार ऐसे बुलाया करते थे। लेकिन यीशु मसीह उसको उन नाम से नहीं पुकारा। People might be calling him as tax collector or thief or whatever the name they could give because out of their frustration. But when Jesus came to him, he did not call him in all of those names, but he called him in his name. Probably people may not be able to understand you. Probably people may not be able to know you. But God, he knows you and he can change you the way he knows you. He wants to make sure that people also should know you. खुदावन आपको और मुझसे इसलिए प्यार करता है कि दुनिया के सामने हमारी जो पहचान है उसको वो बदल दे, और जैसा वो हमें देखता है वैसे ही दूसरों को भी हमें देखने के लिए अगुवाई करे. That's what God does. He not only changes our perspective, but he changes others' perspective towards us. The situation that we are in, we might be giving so many definition of that. We might be giving so many conclusion of that. We might be giving so many names of that. But how God is looking at it. हम हमारी परिस्थिति को, हमारी सिचुएशन को हम कई तरह के नाम से हम पुकारते होंगे, कई तरह की बात हम उसके लिए डिफाइन करते होंगे, कई तरह के काम हम करते होंगे, इसलिए निराश हो जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. लेकिन यीशु मसीह जिस तरह वो जक्कई के पास आता है, ना कि उसको किसी और नाम से बुलाने के लिए, लेकिन उसको उसके अपने नाम से बुलाया. Jesus didn't come to him to call him in any other names, but he called him in his own name. Zacchaeus means the righteous one. जक्कई का मतलब धर्मी व्यक्ति था. सबके सामने जो लोग उसको जानते थे, हर रोज जब जक्कई उनके पास चुंगी लेने के लिए आता था, फोर्सफुली उनसे कलेक्ट करता था, इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो लोग उनको कई कई शब्द से बुलाया करते थे, कई कई नाम से उसको पुकारा करते थे. The people in front of all the people, those people who knew him very well, and they were very much hating him, and they didn't want him to come to him, because every day he used to come, he used to ask them the tax forcefully. So nobody wanted to know him well, and nobody wanted to call him as their friend. Everybody were hating him. आज दुनिया में लोग आपको नफरत कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपसे नफरत नहीं करता है. दुनिया में लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ता है. दुनिया में लोग आपको भले बुरे कह सकते हैं, लेकिन यीशु भले बुरे नहीं कहता है. दुनिया में लोग शायद आपको कई और नामों से पुकारते होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको आपके नाम से जानता है, आपके नाम से पुकारता है और आपके नाम के जैसे आपको ब्लेस करता है. Maybe today people are hating you, but Jesus loves you. Maybe people are calling you in so many other names out of their frustration, out of their own perception, but Jesus calls you in your name and he wants to bless you in your name. Maybe people in the world don't like to meet with you, but Jesus, the King of Kings and Lord of Lords, he wants to meet with you. He wants to have fellowship with you because he loves you. When Zacchaeus was on the tree and Jesus came to him and said, come down, Zacchaeus, I want to come to your house. When he went to his house, he did not point him out, hey, you did this wrong, you have this problem, you have that problem. जक्कई के घर में जाके यीशु मसीह ने कोई उसका प्रॉब्लम को नहीं बताया, but he showed his love. So his life got changed.
जब यीशु मसीह उसके घर में गया, यीशु मसीह उसको नहीं बताया तूने ये गलत किया, ये गलत किया, ये सही नहीं किया, ऐसे नहीं किया है। वो अपना प्यार उसको उसके साथ जाहिर की, और वही प्यार उसके जीवन को बदल दिया। उसके जीवन को ही नहीं बदल दिया, लेकिन उसके जीवन के जरिए से कई लोगों का जीवन को ब्लेसिंग मिली। जब जाके उस कहता है मैं जितने लोगों से मैं बेईमानी के साथ लेके आया हूं, मैं उनको 4 गुना वापस कर दूंगा। Not only just Zacchaeus was blessed by the love of God, Zacchaeus became a blessing for many people when he decided to return fourfolds from whom he has taken illegally. Fall in love with Jesus. He will never betray you. He will never leave you. He will never forsake you. यीशु के प्यार में बने रहे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब यीशु के प्यार में रहने का मतलब है हमेशा उसके बारे में सोचना, वो क्या है, वो क्या कर सकता है, और वो क्या बोलता है। यीशु मसीह के बारे में, यीशु से प्यार रखने का मतलब ये है हमेशा उसके बारे में सोचना, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है, और वो क्या बोलता है। These days, what are you thinking so much? What are your subjects of thinking? इन दिनों में आप क्या सोच रहे हैं? आपकी सोचने का शीर्षक क्या है? वैक्सीन कब आएगा, वायरस कब जाएगा, कब सब कुछ खुलेगा, कब मेरी बीमारी से मुझे रिहाई मिलेगी, कब मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, कब मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर यू ओनली थिंक कि आप यही बातों को सोच रहे होंगे? When will the vaccine will come? When will everything will be all right? When will the lockdown will over? When will be allowed to travel around? When my business will click? When I will be free from this sickness? Are you only thinking about all this? What shall we eat? What shall we drink? And what shall we wear? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या इसी बारे में आप सोचते रहते हैं? Jesus said, look at the birds in the sky. Look at the lilies in the valleys. They don't worry because they know that they have God who takes care of them. So seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added unto you. यीशु ने कहा क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इस बारे फिक्र नहीं करना। देखो आसमान के पक्षियों को देखो, इस बगान के फूलों को देखो, वो फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है उनका खुदा है। इसलिए यीशु ने कहा सबसे पहले उसकी बादशाह और उसकी राष्ट्रबाजी को ढूंढो, उसके राज्य को, उसके धार्मिकता को ढूंढो, और ये सारे वस्तु तुम्हें दिया जाएगा। That is what is falling in love with Jesus. Just saying I love you Jesus is not enough. Keep on thinking about Jesus. Keep on talking about Jesus. Keep on pondering about Jesus. लगातार यीशु के बारे में सोचते रहे, लगातार यीशु की बात को सुनते रहे, लगातार उसके बारे में ध्यान करते रहे। The more you think about him, the more you will understand and realize and experience how you will overcome all your situation. The more you think about his word, the more you understand what he can do, you will able to know that because he can do, you will also able to do it. जितना ज्यादा हम उसके बारे में सोचते रहेंगे उतना ज्यादा प्रभु हमें और ब्लेस करेगा। जितना ज्यादा आप इस बात के बारे में सोचते रहेंगे कि वो क्या कर सकता है, तो आप भी वो सब कर पाएंगे जो खुदाबंद करता है। क्योंकि because Jesus said, you will do much more than what I have done in this world. क्योंकि यीशु ने कहा है तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। Fall in love with Jesus. You can do more than what Christ has done in this world. आप यीशु से भी बड़े बड़े काम हम कर पाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है I can do all things through Christ who strengthens me. इसलिए पौलुस कहता है मैं यीशु मुझे सामर्थ्य देता है उसके जरिए से मैं सब कुछ कर सकता हूं। दूसरी बात, respond everything with life. हर बातों को जीवन के जरिए से respond करें। Because we are the children of life. Because we have the gift of life and we have God who himself is life. हर बातों को हम जीवन के जरिए से, जीवन के साथ हम रेस्पॉन्ड करें, लाइफ के साथ, ना कि किसी और बात के साथ, क्योंकि हम जीवन के संतान हैं। हमारे अंदर जो परमेश्वर है वो जीवन है, और हमारा परमेश्वर खुद ही कहा कि मैं जीवन हूं। वी हैव लाइफ इन क्राइस्ट। हम मौत की बात ना करें, हम मौत की तरफ ना सोचे, दुनिया की तरह ना सोचे। You know, in the Garden of Eden, Adam and Eve were prompted by devil to eat the fruit that has knowledge of good and evil, right and wrong. But the fruit they missed out, and God didn't allow them to eat, is the fruit of life. एदन की बटिका में आदम और हवा ने जो फल खाया था वो है सच और झूठ को जानने वाला, अच्छाई और बुराई को जानने वाला फल खाया था। लेकिन खुदा ने उनको वो दूसरे फल, जीवन का फल खाने से पहले ही निकाल दिया, और वो जीवन का फल खा नहीं पाए। सच्चाई और झूठ,
अच्छा और बुरा ये ज्ञान आज पूरे दुनिया में है। आज अगर हम हर बातों को अच्छा है बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा है बुरा है, इसके बारे में इसी पर्सपेक्टिव में ही देखते रहेंगे, हम कभी भी यीशु के प्यार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। If we only keep on thinking everything in our lives in the perspective of good and evil, we will never enjoy, we will never able to experience life that God has for us. Because when we think about good, we will be very much discouraged. Oh, I was not able to do it. And when we think about evil, we'll be very much discouraged that this evil cannot go from me. The knowledge of good and evil will not make us righteous, but the gift of life through Jesus Christ will make us righteous. We are not saved by any of our works, any of our good works or bad works. We are saved by the grace through our faith. कोई भी जानकारी अच्छा क्या है बुरा क्या है ये जानकारी हमें जीवन नहीं देता है, लेकिन जीवन बनाने वाला परमेश्वर को जब हम अपना जीवन देते हैं तो हमें जीवन मिलता है। हमारे भले कामों के वजह से हम बचाए नहीं गए हैं, लेकिन यीशु के प्यार उसके रहम के वजह से हम बचाए गए हैं। So look at all the perspective in the perspective of life, because Jesus is life. इसलिए हर परिस्थिति को आप जीवन की दृष्टिकोण में देखिए। When Jesus came to this house where this little girl of Jairus was dead, Jesus came there. Everybody were thinking in the perspective of death. Everybody were just talking about death. Everybody were just seeing the death. But Jesus came and he saw the life. जब जायरस की बेटी मर गई थी तो वहां पर यीशु मसीह जब आया तो वहां पे सब लोग रो रहे थे, सब सिर्फ मौत की बात कर रहे थे, मर गई, और मौत के सिवा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं था, कुछ सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब यीशु वहां पर आया वो मौत की बात नहीं की, वो जीवन की बात की। शायद आपके बिजनेस, शायद आपके परिवार की सिचुएशन, शायद आपकी फैमिली का सिचुएशन, शायद आपकी जीव हेल्थ का सिचुएशन मरी हुई दिखाई दे रहा होगा। मे बी योर business, maybe your health, maybe your family, maybe your surrounding seems like dead to you. Do not add death in your perspective to make it completely dead, but have the perspective of life and you will see the life. आपके दिमाग को मौत की सोच को ऐड ना करें, लेकिन आपके दिमाग में, आपके मन में आप जीवन के दृष्टिकोण से देखें। जो आप मरी हुई सोच रहे होंगे वो मरी नहीं है। Jesus came and said, stop wailing. यीशु वहां पर आकर क्या बोलता है? रोना धोना बंद करो, ये मरी नहीं है, ये तो सोई है। Jesus said, she is not dead but just sleeping. Everything seems like dead to us, but for God it is not dead, it is sleeping. The same thing happened when Lazarus was dead. Purposefully Jesus delayed to go there because he wanted to show them the glory of God. ठीक है, ऐसी बात हुई जब लाजरस मर गया था, वहां पर यीशु मसीह जानबूझकर डिले करता है 3 दिन, ताकि वहां पर वो अपनी महिमा को लोगों के सामने दिखाए। To whom God loves, he want to show them glory. जिससे खुदा प्यार करता है उसके जीवन में खुदावन अपने जलाल को बड़े रीति से जाहिर करना चाहता है। आप बोलते होंगे हम खुदा के पीछे चलते हैं, हम खुदा की खिदमत करते हैं, हम खुदा के लिए जीते हैं, लेकिन हमारे जीवन में डिले क्यों हो रहा है ब्लेसिंग का? Maybe you are thinking we are serving God, we know God, we worship God, but why it is being delayed? Nothing good is happening. Wait, your time is coming. इंतजार कर, आपका समय आ रहा है। Because he loves you and you fall in love with him and you are seeing life in all perspective, he will come and he will show you greatest glory that you have ever seen in your life. वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में आएगा और वो सारे जलाल हमें दिखाएगा जो कि अब तक हमने नहीं दिखाए। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, do not lose heart, even though it seems like delayed, even though it seems like dead, when he comes, he will change the scenario. आप दिल छोटा मत करना। शायद वो सिचुएशन, परिस्थिति, बिजनेस मरी हुई लग रहा होगा, लेकिन जब वो आता है, जब वो आपके जीवन में आता है, जब वो आप उसके प्यार में बने रहेंगे, वो आपके जीवन में आता है और मरी हुई सिचुएशन को और डिले सिचुएशन को वो जीवन में बदल देता है। Lazarus was dead. His sister Martha came running to Jesus and said, if you were here earlier, probably there would be something we could hope for. मार्था ने बोली, अगर आप पहले आए होते तो हम कुछ अच्छी बात की उम्मीद कर सकते थे। But now no more. Probably some of you are seeing your situation, your family, your circumstances, and you're spending time in crying like the family of Jairus. Maybe you have lost hope like Martha, but I have a good news for you.
It seems delay in your sight, but it is not delayed in God's sight. It seems like dead in your sight, but it is not dead in God's sight. शायद आपको ये देर लग रहा होगा कि ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके नजर में ऐसा लग रहा है कि ये खत्म हो गया है, ये मर गया है, आपको लग रहा होगा, लेकिन खुदा के नजर में, यीशु के नजर में वो अभी तक डिले नहीं है, वो अभी तक मरा नहीं है। आपका समय आ रहा है, आपके घर में, आपके पास, आपके जीवन में, आपके घर में यीशु आ गया, मतलब सब कुछ हो गया। और जब यीशु वहां पर आ गया, यीशु ने कहा ये मरी नहीं है, ये सोई हुई है, बेटी उठ जा टबीथा। जब यीशु ने कहा बस उतना काफी है, उसी वक्त वो मरी हुई बेटी जिंदा हो गई। When Jesus came in that house and he said, stop crying. And when Jesus said, she is not dead, she is sleeping, she called her Tabitha, get up. When he said that word, that was enough for the dead girl to rise up. That's something God wants to do in your life. When Lazarus was dead and he was in the tomb for 3 days, Jesus came and he said, Lazarus, come out. That was enough for Jesus to do, and everybody saw the glory of God. Never they have experienced that, but they have experienced that for the first time, somebody coming out of the tomb after 3 days. उन्होंने ऐसे बातें कभी देखा नहीं था, जिंदगी में पहली बार देखा है कि कोई मुर्दा 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद कब्र में से निकल के आ रहा है. What are the things you are expecting and it didn't happen yet, and you have lost your hope, and you have closed all the chapter, and you said, never mind, let me just die, never mind whatever happens, and you are discouraged. Maybe some of you have fallen in the addiction of drugs. Maybe some of you have fell in the drugs, in the addiction of alcohol. Maybe some of you are depressed. Some of you are discouraged. Come up, come back to Jesus. Embrace his love. His love forgives all your sins, and his love will restore all your circumstances and your life. कई शायद निराश होकर अपने जीवन में सब कुछ खराब होते हुए देखकर शायद कई लोग नशे में पड़ गए होंगे, कई लोग ड्रग्स में पड़ गए होंगे, शायद आप जो है निराश हो गए होंगे, आप शायद डिस्करेज हो गए होंगे किसी भी अच्छी चीज काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, या चर्च जाने के लिए, या एनकरेज रहने के लिए आपको दिल नहीं लग रहा होगा। आज मैं आपसे बोल रहा हूं, आज आपका समय है, आप खड़े हो जाइए, आप आज तैयार हो जाइए। यीशु आपके पास विजिटेशन करने का समय आ गया है, और वो जब आपको विजिटेशन आपका आज करेगा, आप जो चीज उम्मीद लगा के बैठे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, खुदाबंद यीशु मसीह वो सारे चीजों को सही करने के लिए सामर्थ रखता है, रिस्टोर करने के लिए सामर्थ रखता है। मौत में जिंदगी लेके आने वाला वो परमेश्वर है, बीमारी में चंगाई के लेके आने वाला वो खुदा है। वो हर हमारी सिचुएशन जो हमारे लिए डिलेड लगता है उसको सही करने वाला खुदा वही है। जो हमारे नजर में डेड लग रहा होगा उसको उसमें जिंदगी लेके आना यीशु मसीह का काम है। He can bring life in the midst of death. He can bring life in the midst of death. Believe in him today. Come back to Jesus. He is inviting you today. He's inviting you. Come and see what I can do for you. Come and receive this love. Jesus is calling you today. यीशु आज आपसे बुला रहा है, आपको बुला रहा है और आपसे बोल रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आओ और शांति पाओ। हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। Come to me, all those are heavy laden and burdensome, and I will give you rest. What is something that you are worried of? Death, delayed, trouble? Nothing is impossible with God. Do not lose life. When you have life, you have life in everything. जिंदगी को मत खोना। जब जिंदगी आपके पास है, सब कुछ आपके साथ है। ये सिर्फ सांस लेने वाली जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असल जिंदगी की बात भी कर रहा हूं जो यीशु मसीह देता है। Jesus said, I will give you life, abundant life and eternal life. यीशु मसीह हमसे वादा किया है कि वो हमें भरपूरी जीवन देता है और अनंत जीवन देता है। आज आपके पास चॉइस है, क्या आप ये भरपूरी जीवन को रिसीव करना चाहते हैं? क्या आप ये अनंत जीवन को रिसीव करना चाहते हैं? आपको बस अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पास आकर बोलना है, खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हवाला करता हूँ, तेरे हवाले में लेके आता हूँ। We have to say one thing, Lord, I leave everything and come to you, surrender myself to you. Forgive me. Come into my heart. Be my Lord. Be my Savior. If you are a believer but you are being discouraged, come back to me and say, Lord, forgive me because I have forgotten your love. I have only looked all the things in the perspective of death. Today I am renewing my mind to see everything in the perspective of life. When we see things in the perspective of life, you will enjoy life in everything. You will not fall down. You will not be defeated. You will not be forsaken. You will not lose your battle.
आप हारोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, आप परित्यक्त नहीं हो जाएंगे। आपको खुदाबंद जरूर उठाएगा। जिस मकसद के लिए आपको चुना है, आपके बरकत पाने का समय आ गया है। The time for you to be blessed has already come. Stand, receive him, fall in love with Jesus and see everything in the perspective of life. यीशु के प्यार में डूब जाइए और हर चीजों को जीवन के पर्सपेक्टिव में, दृष्टिकोण में देखना शुरू करिए। ये दो चीज आज हम सीख रहे हैं, ये दो चीज को आज हम फॉलो करेंगे। हमारे चारों तरफ हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारे सोशल सिचुएशन, हमारे फिजिकल सिचुएशन, हमारी इमोशनल सिचुएशन, हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को हम लाइफ के पर्सपेक्टिव में देखें। In all our situations, let us see things in a perspective of life, and the perspective of life is the perspective of God. When there was nothing, there was darkness all around, Jesus spoke light. And when he made man in his own image, it was only a doll. It was only an image, but Jesus gave life. God is the God of life. God of the Bible is the God of life. बाइबल का खुदा जीवन का खुदा है। जब उसने आदम हवा को बनाया, जब वो बनाया, वो एक पुतला ही था, लेकिन उसने वहां पे जीवन दिया, वो जीवन देने वाला। जब पूरे धरती पर, पूरे यूनिवर्स पर अंधकार छाया था, यीशु ने ज्योति दिया। गॉड ऑफ द बाइबल, बाइबल का खुदा जीवन का खुदा है। क्या आज आप उस जीवन को पाना चाहते हैं? क्या आज अपने दिल में जो भी डिस्करेजमेंट है, उसके बदले में एनकरेजमेंट पाना चाहते हैं? क्या आज आप ये कहना चाहते हैं, यस खुदावन, आज मैं तैयार हूं तेरी चंगाई के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी रेस्टोरेशन के लिए? आज आपका समय है। क्या आर यू सेइंग दिस टुडे, लॉर्ड, यस आई एम रेडी फॉर द रेस्टोरेशन, फॉर द हीलिंग, फॉर द जॉय, फॉर द पीस इन माय लाइफ? डोंट ब्लेम गॉड, डोंट कंप्लेन टू गॉड, you will be the loser. कंप्लेन ना करें, ब्लेम ना करें। कंप्लेन will keep you remain wherever you are. अब अगर आप कंप्लेन करेंगे, आप जहां पे हैं वहां पे ही रह जाएंगे। लेकिन when you praise, you will see you are raised. जब आप प्रस्तुति करना शुरू करेंगे, खुदावन आपको उठाएगा। हमसे खुदावन कोई भी चीज का कर्जदार नहीं है, लेकिन हम उसके कर्जदार हैं। God doesn't owe us anything. We owe him everything. Even though he don't owe us anything, he is giving us an invitation. Come and receive. Let us turn from all our sins. Let's turn from all our crooked ways. Let's turn from all our worldliness and come back to him and experience the restoration. हमारे गुनाहों को हम छोड़े, हमारे सारे दुनियादारी को छोड़े, हमारे सारे घमंड को, हमारे सारे अपनी बात को छोड़कर यीशु मसीह के पास आए। He is willing to restore. वो आपको दुख के वक्त खुशी देता है, कमजोरी के वक्त ताकत देता है, और हर वक्त आपके साथ रहकर आपकी मदद करता है। He wants to give you life in the midst of death. He will encourage you when you're discouraged. He will give you hope in the midst of hopelessness. Are you willing to say, yes, Lord, I don't want to lose my heart. I don't want to focus on what is seen, but I want to focus on what is unseen. I don't want to focus on this world. I want to focus on God. I don't want to live in a perspective of death. I want to live in a perspective of life. I want to fall in love with you, I will not fall in love with the world or the things of this world. I want to fall in love with you. Are you the one to make this decision? Close your eyes and pray with me. अगर आप यही निर्देश लेना चाहते हैं, अपनी आंखों बंद करें, मेरे साथ दुआ करें। Lord, I pray for my friends who are willingly and with all heart committing this, that we will fall in love with you. We will walk in a perspective of life. Bless them with all the blessings that you have in store for them. खुदावन मैं दुआ करता हूं मेरे भाई और बहनों के लिए, जो आज इस कलाम के मुताबिक आज यीशु के प्यार में दीवाना होने के लिए और अपने जीवन में हर परिस्थिति को जीवन के दृष्टिकोण में देखने के लिए आज कमिटमेंट कर रहे हैं, उनको तू ब्लेस कर। May they experience life, may they experience healing, may they experience victory, may they experience restoration. खुदावन वो जीवन, नूतनीकरण, प्यार और जीवन को वो एक्सपीरियंस करें। May your glory be visible in their lives. प्रभु जी तेरी महिमा उनके जीवन में दिखाई दे। तू कर रहा है, ये हम विश्वास करते हैं। We believe, oh Lord, you're doing it right now. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से दुआ करते हैं। Amen. Amen.
मैं विश्वास करता हूँ आज आपको खुदावंद ने ब्लेस किया है। I believe that God has blessed you today. Do not lose your heart because Jesus loves you. अपने दिल को छोटा ना करें, यीशु आपसे प्यार करता है। Nothing is impossible for him. He is just waiting for you to allow him. कोई बात नामुमकिन नहीं है, वो सिर्फ आपकी इंतजार कर रहा है कि आप अलाउ करेंगे, आपके जिन्हों बड़े बड़े काम करेगा। Spend more time in prayer these days. And let's sing this song as we respond to this message. And take care till we see you again. God bless you. We love you. अगले हफ्ता ठीक से इस जगह मिलने तक आप अपना टेक केयर करें, लेकिन अभी जो हमने कलाम सुना है उसके मुताबिक हम अपने जीवन को कमिट करें। इस गीत के जरिए से यीशु आपसे प्यार करता है। जब से मैंने यीशु को पाया है, ये मेरा जीवन संवर गया है। जब से मैंने यीशु को पाया है, ये मेरा जीवन संवर गया है। मैं करूं उसकी प्रस्तुति पूरे दिल से, छुड़ाया है उसने मुझे सारे पापों से। मैं करूं उसकी प्रस्तुति पूरे दिल से, छुड़ाया है उसने मुझे सारे पापों से। ये दुनिया ये शोहरत नहीं किसी काम की, ये दौलत नाम इज्जत सब थोड़ी देर की, सब थोड़ी देर की। ये दुनिया ये शोहरत नहीं किसी काम की, ये दौलत नाम इज्जत सब थोड़ी देर की, सब थोड़ी देर की। यीशु में जीवन होता है सका, उसको मैंने बनाया है मेरा जीवन का आधार, उसको मैंने बनाया है मेरा जीवन का आधार। जब से मैंने यीशु को पाया है, ये मेरा जीवन संवर गया है। जब से मैंने यीशु को पाया है, ये मेरा जीवन संवर गया है। मैं अब तो नई सृष्टि हूँ, उसके वसीले मैं नया बन गया हूँ, मैं नया बन गया हूँ। यीशु में मैं अब तो नई सृष्टि हूँ, उसके वसीले मैं नया बन गया हूँ, मैं नया बन गया हूँ। जब मैं हूँ कमजोर वो मेरी ताकत, अब मेरे ऊपर है यीशु मसीह का हाथ, अब मेरे ऊपर है यीशु मसीह का हाथ। जब से मैंने यीशु को पाया है, ये मेरा जीवन संवर गया है। जब से मैंने यीशु को पाया है, ये
संवर गया है। हमारे बारे में बहुत जानने के लिए और खुदा की खिदमत में इन्वॉल्व होने के लिए आप लोग ज़रूर हमारे वेबसाइट में जाइए faithshalom.com to know more about us and also to be involved in our ministries. Please visit our website faithshalom.com and also write to us your prayer request. Write to us how God has been intervening in your life. हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजिए और खुदावंद किस तरह आपके जीवन में काम कर रहा है आप हमसे हमारे साथ शेयर करिए। हम विश्वास करते हैं खुदावंद ने आज आपको ब्लेस किया है। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह पर दोबारा मिलते हैं। वी विल सी यू अगेन इन द सेम प्लेस सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और आशीषित रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।